نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ اہل صدق میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں اپنی پچھلی تقریر میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی بنیادی طور پر ہمارے پاس رب نے بھیجا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے. کیونکہ آدمی کو یقین کے دو طریقے ہیں. آپ کو وشواس ہو جائے، آپ یقین کریں تو یہ رستہ ہے. ایک تو یہ اکیا سے دیکھ لیں، کان سے سنیں گے. کچھ بیوقوف لوگ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں. ایسا کاہے بولا تھے ہم سنے ہیں. تو جو سن لو گے وہ صحیح ہے کام. نہ کان کی سنی بات صحیح ہونا ضروری نہیں. اکیا سے دیکھ لو یا جانچ پڑتال کر لو، پھر الزام لگاؤ. یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ جب تیرے پاس کونو خبر آئے تو کر تحقیق کر لو. ایسا نہ ہوئے کہ تیرے منہ سے نکل جائے اور بعد میں پچھتاتے رہو. اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم سنی بات نہیں منوائے، 80% تو جھگڑا ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے جھگڑالو ہونے کے لیے سننا بہت ضروری ہے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں. انڈیا میں کبھی ہندوؤں کی آواز سنتے ہیں، شیعوں کی آواز سنتے ہیں. اب سنتے ہیں، سننا ہے تو سنیں گے. مانتے نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اچھا چلو ہم آگے کہتے ہیں کلید کا اعلان کرو. کاہے جان بھوا؟ ہاں بھوا. تمہیں کیسے معلوم؟ ہم سنے. کرو اعلان، منواؤ عید. ہم سنے. روٹاٹا میں عید کرو. کاہے کری؟ ہم سنے. چندوا دیکھے ہو؟ نہیں دیکھتے ہیں، سنے. کرو گے روزہ رکھو گے سن کے، عید کرو گے سن کے. ہمیں جب بندگی میں سننے کی ویلو نہیں تو زندگی میں کون ویلو؟ کہتے ہیں نا دیکھنے والا لاؤ، دیکھنے والا لاؤ تب منوائے. جب دن دیکھنے والے آتے ہیں تب اعلان کیا جاتا ہے. اب ماننا ہے اللہ کو، ماننا ہے قبر کے اندر کے سوال کو، ماننا ہے محشر کے حساب کتاب کو، ماننا ہے جنت اور دوزخ کے وجود کو. وہ تو سنائی ہو نہیں پڑتا. دکھائی تو بڑی بات. تب اللہ نے نبی بھیجا. کیونکہ اب ماننے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، سنائی پڑے نہ سنائی پڑے، مگر کہے والا سچا ہو. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پکا یقین ہے کہ وہ اکرے ابا کے ہیں.
ہمیں پکا یقین ہے کہ محدث اعظم ہمارے باپ، نورانی میاں کو بھی پورا یقین ہے کہ ہاشمی اس کا باپ ہے، آپ کو بھی تو یقین ہوگا اپنے باپ پہ، وہ ابا بنے تو دیکھے ہو۔ کوئی دیکھے ہوئی بتا، اما بنتی ہے کہ ہاسپٹل میں ایک کو دکھائی تو دیتا ہے، ابا بنتے ہیں یہ کسی کو نہیں دکھائی دیتا، پھر اتنا پکا یقین کیسے؟ اما پہ بھروسہ کر کے یقین کیا، تو ماں پر جس بچے کو بھروسہ ہوگا وہ ماں کے کہے ہوئے کو باپ مانے گا، تو میرے نبی پر جس کو بھروسہ ہوگا اس کے کہے سے وہ خدا کو اس کے ہر کہے پر اسے بھروسہ ہوگا، اسے کہا لا نبی آبادی، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، تو بنا کریں لوگ، کہا کریں لوگ ہمیں نبی پہ بھروسہ ہے۔ جس طرح ماں پر بھروسہ باپ تک لے جاتا ہے، اسی طرح نبی پہ بھروسہ خدا تک لے جاتا ہے۔ اور وہی کہیں کی قبر میں 3 سوال، اور وہی ہم لوگوں کو جانا ہے۔ روٹرڈم میں رہتے ہیں، جناح میں رہتے ہیں ہم لوگ، گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جانا تو قبر ہی میں۔ اور حضور نے کیا کہا؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربوں کا، دوسرا سوال ماں دینوں کا، تیسرا سوال ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کی ہے، دوسرا سوال ہوئی ہے تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ این مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے۔ یہ 3 سوال ہوئی، اور یہ 3 سوال کو کونوں سپر پاور کنٹری سن نہیں سکتی۔ ہم جیسے غریب آدمی کیسے سنیں گے؟ بڑے بڑا سائنٹسٹ بھی جب سوالوا ہوئے میں کیمرہ ڈالا جائے اب یہ باہر نہ آئی، تو نہ سنوائے نہ دیکھوائے، مان لیا ہم نے 3 سوال ہوگا، خالی نبی پہ بھروسہ، یہی بھروسہ ٹوٹے گا تب اسلام ٹوٹے گا تیرے اندر۔ بھروسہ جتنا مضبوط، تعلق اتنے مضبوط۔ ایک بات کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے جا رہے تھے، ایک جگہ رک گئے، دیکھی تو وہاں تو عرب میں یہ ببول کے پیڑ ہوتے تھے، بہت دیر تک نرم رہا ہے، بہت دیر تک ہریالی رہا تھی۔ ایک نرم شاخ برانچ توڑ کے سرکاروں کے 2 ٹکڑے دیے، ایک قبر پہ گاڑ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ، اور چل دی وہاں سے۔ اللہ صحابہ کرام کی قبروں میں رحمتوں کو کی بارش کرے، ہمیں چپ رہتے تو پتہ ہی نہیں چلتے سرکار نے کیوں کیا۔ اسی میں ایک صحابی نے بولی یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے شاخ توڑی، وہ کہ 2 ٹکڑے کیے، ایک ہی قبر پہ ڈال دیا، ایک دوسری قبر پہ ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو ان 2 قبروں میں میں نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ اب کون بات سے؟ بہت چھوٹی بات، یہ چاہتے تو بچ جاتے، کوشش نہیں کی بچنے کی، چاہتے تو بات معمولی تھی۔ یہ قبر والا جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹا سے بچتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا،
गड़े गड़े, पड़े पड़े, खड़े खड़े, बेड़े बेड़े, बचता नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं था, ध्यान नहीं था, छींटा पड़ता था उसका आसार। और दूसरी कबर में जब लेटा ये चुगली खाता था, एहर की बोहर लगा, बोहर की एक मस्जिद के इमाम की बात दूसरी मस्जिद के इमाम से आपका सब ऐसा कहा करें, ऐसा कहा, ऐसा कहा, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, हमें नहीं कि इधर से आप उधर, आपको ऐसा कहा, रोटरडम के इमाम सब ऐसा कहा, डेन हाग को आग लग गई, डेन हाग के इमाम ने एम्स्टर्डम में आग लग गई, चुगली खाई, उसका आजाब। चुगली ना खाओ भाई, अगर बड़ा शौक है तुम्हें अरवा का खाएगा, हवा खाओ, और उस लायक रहो तो जूता खाओ, चुगली ना खाओ। सच्ची बात पे कसम खाओ, या जो अल्लाह ने हलाल किया है वो खाओ, चुगली ना खाओ। बोला गोश्त रोटी चावल हलाल है, होगा ज्यादा खा ली तो पेट खराब हो जाता है, और चुगली दिन रात खाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होता, मैदा में हजम। चुगली खाता, इधर उधर की लड़ाता, और आज भी हमारी सोसाइटी में चुगलखोर है। भाई भाई को लड़ा देते हैं, बाप बेटे को लड़ा देते हैं, दो आलिम दीन को लड़ा देते हैं, दो इमामों को लड़ा देते हैं, दो मस्जिदों को लड़ा देते हैं, दो सेंटर को लड़ा देते हैं, दो जमात को लड़ा देते हैं, और दो भाइयों को लड़ा। ये चुगलखोर, इनका चिन्हित करो, इन्हें फिक्स करो, इन्हें पहचान लो, इनसे बचो। तो फिर ये जो आप गाड़े हो, इसका क्या मतलब? कहीं सुनाओ, ये जितनी दुनिया में पत्तियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं, झाड़ है, पेड़ है, जब तक ये हरे हैं अल्लाह का जिक्र तस्बीह करते हैं, अल्लाह की बाकी बयान करते हैं। तब तो जब तक कबरिया पर ये तस्बीह करेंगे, बाकी बयान करेंगे, तो इससे उसके अजाब में कमी होगी, बरकत से। तो हम सोचा गुनहगार है तो कर गुनाह सजा हो रही, अजाब हो रहा, तो अजाब कब होगा? और परहेजगार लेटा है और हरी पत्ती डाल दिया तो दर्जा बुलंद होगा, तो का दर्जा बुलंद होगा। तो तुम गुनहगार पर भी फूल चाहो, परहेजगार पे भी चाहो, गुनहगार का अजाब खत्म होगा, परहेजगार का दर्जा बुलंद होगा। अब यहाँ जो सोचने की बात है, हदीस मुकम्मल हो गई कि हुजूर कब्रिस्तान से जा रहे थे, दो कब्रों पे अजाब हो रहा था, उन्होंने दो शाखें डाल दी और फिर फरमाया कि एक चुगली खाता था, एक पेशाब से नहीं बचता था, अजाब हो रहा था। तखफीफ अजाब में कमी हो जाएगी जब ये जिक्र तस्बीह करेंगे, बात मुकम्मल हो गई मिशकात शरीफ। मगर मैं सोचने लगा कि बड़े से बड़ा साइंटिस्ट खड़ा होकर कब्र का अजाब नहीं देख सकता, क्योंकि कब्र का अजाब गैब है। नबी ने गैब देखा, अब भी गैब नहीं मानोगे? तो चलो, हाजीपुर साहब चौंकाने वाली है वो कि अजाब हो रहा है, वही देखना नामुमकिन था, मगर चलो हो रहा है, हो रहा है, ये तो देख लिया, मगर किस वजह से हो रहा है वो वजह तो जिंदगी में थी। अरे जब जिंदा था तब पेशाब से नहीं बचता था, जब जिंदा था तब चुगली खाता था। कब्र में अजाब तो प्रेजेंट है, मगर एक वजह पास्ट है। नबी प्रेजेंट भी जानता है, पास्ट भी जानता है, और फ्यूचर भी, कि अगर हरियाली रहती जाए तो फ्यूचर में अजाब कम हो जाएगा।
आंख से छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपे तो इनके मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपेंगे? एक बात हो, जब मेरे नबी की आंख से छुपे गुनाह नहीं छुपते, छुपे हुए गुनाह नहीं छुपे, तो तेरे छपे हुए गुनाह प्रेस में छपे हुए गुनाह कैसे छुपाएंगे? अब नाउ यू कंसंट्रेट, तवज्जो चाहिए हमें आपकी तीनों सवाल। पहला सवाल है मन रखूंगा, दूसरा सवाल है मादीनों का। और हुजूर ने दो ही बात का सवालों बताया और जवाब। पहला सवाल होगा मन रखूंगा, मोमिन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का मोमिन जवाब देगा दीन इस्लाम, जवाब भी बताया। यहाँ पूरे यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, पांचों कॉन्टिनेंट में इम्तिहान होता ना, एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तब पता चलता है सवाल क्या है। पूरी दुनिया में स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तब उसका पता लगेगा फिजिक्स में क्या सवाल है, केमिस्ट्री में क्या सवाल है, जोलॉजी का क्या सवाल है, बॉटनी में क्या सवाल है, मैथमेटिक्स में क्या सवाल है, अलजेब्रा में क्या सवाल है, ज्योमेट्री में क्या सवाल है, स्टैटिक्स में क्या सवाल है, कॉमर्स में क्या सवाल है, बैंकिंग में क्या सवाल है। जाएगा, पढ़ेगा, तब जवाब देगा। अगर 25 दिन पहले मिल जाए पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, चेंज करो दूसरा। कोई गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी कि स्टूडेंट का इम्तिहान होए और 20-25 दिन, एक महीना पहले पेपर उनके हाथ में। ये हमारा सिस्टम कि जब तक हॉल में न जाएगा उसको पेपर नहीं मिलेगा। और ये मेरे नबी का करम है कि 1400 बरस पहले पेपर आउट कर दिया। 1400 साल पहले मेरे नबी ने पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रखो का है, दूसरा सवाल मदीनों का, तीसरा सवाल। पहले सवाल का सही जवाब है रब्बी अल्लाह, दूसरे सवाल का सही जवाब है दीन इस्लाम। पेपर भी आउट किया, जवाब भी आउट किया, अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। अब आइए आपकी तवज्जो। पहले सवाल में पूछा गया रब के बारे में, और दूसरे सवाल में दीन के बारे में, और तीसरे में नबी के बारे में। ये तरतीब ऐसे का है, पहले अल्लाह, फिर दीन, फिर नबी। मन रबों का में पहले रब, माँ दीनों का में दूसरे पे दीन, और माँ कुंता तकुल फी हाज़ा रजुल, नबी के बारे में तीसरा सवाल। पहले अल्लाह तो समझ में आया, सबसे बड़ा है वही बारे में पहले पूछो, मगर अल्लाह के बाद दर्जा रसूल का है, ये बीच में दीन कहाँ से आवा? ये तरतीब का है, अल्लाह पहले, दीन बाद में, नबी हो के बाद। ये पर क्या असल में ये दुनिया में भांत भांत के लोग, किस्म किस्म के हैं, रकम रकम के हैं, मेनी काइंड्स। अब एक चादर के नीचे एक आदमी का हम छुपाएंगे, आप लोगों को बुलावा, बताओ ये चदरिया के अंदर जो है कौन है? हजरत बताइए, पता नहीं ये आस्तिक है कि नास्तिक है, मुल्हिद है कि जिंदीक है कि बेदीन है, मुनकिर खुदा है, अल्लाह को मानता भी एक नहीं मानता। हाँ, ऐसा लोग हैं। तो पूछ ले मन रब होगा, मेरा रब कौन है? अगर वो जवाब दे मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब खुदा को मानता है, खुदा को मानता है, मार्क्सिस्ट नहीं है, खुदा को मानता है, नेचरी नहीं है, खुदा को मानता है, मुनकिर खुदा नहीं है,
मगर फिर शुबहा पैदा हो गया, यार खुदा तो हर रिलीजियन में है, किस दीन की बुनियाद पर, कौन धर्म की बुनियाद पर खुदा को मानता है? यहूदी की बुनियाद पर मानता है कि नसरानी की बुनियाद पे मानता है कि हिंदुइज्म की बुनियाद पे मानता है, गौतम बुद्ध की बुनियाद पर मानता है या गुरु नानक की बुनियाद पे मानता है? खुदा को मानने वाले तो हर धर्म में आए, किस बुनियाद पे? तो पूछ ले मार्टिनो का। क्या कहने तेरा दीन क्या है? उस जगह दीन इस्लाम। ओ हिंदू नहीं है, नसरानी ना हो, ये मिर्जाई भी नहीं है, ये तो मुसलमान है, ये सिख नहीं है, ये सनातन भी नहीं होए और समाज आर्या भी नहीं, नारिया न जारिया, तो मुसलमान है। लेकिन यार फिर शुबहा पैदा हो गया, मुसलमान में तो बहुत फिरका है, बहुत ग्रुप है, ये कौन ग्रुप का है? तो पूछ रहे माकुन का तकुलो, बता नबी को क्या कहा करता था? क्या कहा करता था? अकीदा दाई हो जाए। बात यह है कि खुदा को मानना तेरा दावा है, इस्लाम को दीन मानना तेरा दावा है, तेरा नबी इन दोनों दावे की दलील है। खबर में यह तय किया गया कि तूने खुदा को किसकी बुनियाद पर माना, दीन को किसकी बुनियाद पर माना, वो है रसूल। अब यहाँ उलमा की तवज्जो, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूंगा। माँ तक़ूलो फी हाज़ा रजुल सवाल में नहीं है, माँ तक़ूल नहीं है, माँ कुंता तक़ूल, इस्तिमरार का माना पैदा हुआ, क्या कहा करते थे। सिर्फ नबी को पहचानने का मसला यहाँ नहीं है, तेरी आदत पूछी जा रही है, क्या कहा करते थे? तो मुर्शिद ने सिखा दिया, आदत बना दिया, या नबी कहा करते थे, या रसूल कहा करते थे, या कहा करते थे। इन्हें बताना पड़ेगा कि ये क्या कहा। फिर यहाँ एक सवाल है, जब रब के बारे में सवाल हुआ तो क्वेश्चन में लफ्ज रब है, मन रब्बो का, और जब दीन के बारे में पूछा गया तो क्वेश्चन में दीन है, माँ दीनों का, और जब नबी के बारे में पूछा गया तो क्वेश्चन में नबी नहीं है। माँ कुंता तक़ूलो फी हाज़ा रजुल, रजुल है नबी नहीं, मर्द है नबी नहीं। ये नबी को मर्द क्यों कहा? इस्लाम को दीन कहा, खुदा को रब कहा, रसूल को नबी क्यों नहीं कहा? मर्द क्यों कहा? क्या कहने ये मर्द है, मर्द जो वाकई मानो इस्लाम में मर्द होगा वही इस मर्द को पहचानेगा, ना मर्दों को जो दीनो इस्लाम में मर्द होगा वही पहचानेगा, जो नहीं पहचान सका वो मर्दों में नहीं, और जो मर्दों में नहीं होता वो फिर क्या होता है? वहां पूछो जहां ये हादसा हो। अब मैं आपको बच्चे बताऊं नबी क्यों नहीं कहा। बहुत अच्छा किया जो नबी नहीं है। माँ कुंता तक़ूलो फी हाज़ा नबी, अच्छा हुआ जो है लफ्ज नबी नहीं है, वरना लोग ये बहस करते मर्द होता ही नहीं बगैर जिस्म के। अगर कोई के पास ऐसा मर्द हो, क्योंकि पास शरीर ना हो मर्द हो, बॉडी ना हो मर्द हो, है मुमकिन? है संभव ही है, हो सके ना। बगैर जिस्म के मर्द नहीं होता। कान खोल कर सुन लो,
मगर मेरा नबी बगैर जिस्म के नबी रहा। मेरा नबी बगैर जिस्म के, बगैर बॉडी के नबी रहा। मैं रहा कह रहा हूं, है नहीं कह रहा हूं। कुन तो नबी हूं आदम बैनल माए वस्तीन। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के बीच में थे। ड्यूरिंग वाटर एंड सोयल, बिटवीन वाटर एंड सोयल, तब मैं नबी था, आदम से पहले। ठीक है? जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, या मिट्टी और पानी के दरमियान थे, नॉट कंप्लीटेड, पूर्ण रचना नहीं भई रही, उनकर बानी पूरी नहीं बनी रही मुकम्मल। हुजूर फरमाते मैं उससे पहले नबी था। तो आदम से पहले नबी, एक बाजू रखते। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या? दुनिया का पहला आदमी के है? आदम अलैहिस्सलाम। पहला इंसान आदम, पहला बशर आदम। इसीलिए हजरत आदम को अबुल बशर कहा थे, क्योंकि आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई मर्द, आदम से पहले कोई औरत नहीं ना। हुजूर कहा था मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, और जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है, नबी रह चुका है। अब बतिया क्लियर हो गई कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐलान नबूवत के लिए तुम्हें बशर नहीं बनाया जाएगा आदम से पहले, लेकिन जब मक्के में 12 रबीउल अव्वल को लोगों में भेजा जाएगा तो बशर बना के भेजा जाएगा। बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबास में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के यूनिफॉर्म में जाओ, आदमी को राह दिखानी है तो आदमी के लिबास में जाओ। ये रसूल तुम जब चलोगे ना तब मेरे बंदों को चलना है, खाओ, मेरे बंदों को खाना आ जाए, तुम पियो, मेरे बंदों को पीना आ जाए, तुम शादी करो, मेरे बंदों को शादी करना आ जाए, तुम सच्ची सच्ची बात सुनाओ, मेरे बंदों को सच बोलना आ जाए। ए रसूल तुम इबादत करो, मेरे बंदों को इबादत करना आ जाए। ए रसूल तुम बिजनेस करो ताकि मेरे बंदों को बिजनेस करना आ जाए, और औलाद की परवरिश करो ताकि औलाद की परवरिश करना आ जाए। और ये जो मस्जिद में बुत रखे हुए इन्हें बाहर निकालो ताकि मस्जिदों से बुत निकालना आ जाए, मेरे बंदों को बुत निकालना आ जाए। और जब इस्लाम खतरे में आए तो करबला में अपने पूरे परिवार को कटवा दो ताकि मेरे बंदों को कुर्बानी देना आ जाए, मेरे बंदों को ईसार करना आ जाए। तो ए नबी, आप बशर हैं तो हिदायत के लिए हैं, और हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए। तो अब अगर मेरे नबी ने कहा, फरिश्ते ने पूछा होता मैं कुंता तकूलो फी हाज़ा नबी, तो सारे मौलाना लोग जमा हो जाते कि सुनो, नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, आदम से पहले रह चुके हैं बगैर जिस्म के, तो हई शकत से बगैर जिस्म के हैं, खाली रूह आई हुए, बानी ना हुए, सरकार वहीं हुए, शऊर आ गया। ज़ाते पाके मुस्तफा कब्र में नहीं आती, बल्कि बगैर जिस्म के वो रह चुके हैं। तो फरिश्ता जानता था बेईमानों की होने वाली बेईमानी, कहा हम तोहरी जड़िया ही काट के हुए, हम नबी लफ्ज बोलबे न करबे, हम बोलेंगे मर्द, और मर्द बगैर जिस्म के नहीं, कब्र में जो आया है वो मर्द है, इसका मतलब जिस्म और जान के साथ आया। अब लोग ये कहे लगे कि हाँ नहीं सरकार ही होते हैं, नहीं सरकार ही होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है सरकार ही होते हैं लेकिन आते नहीं, सरकार की शबीह आ जाती है। शबीह फोटो, फोटो
हमें यार पूरी उम्मत का मना की न फोटो बिला वजह बिला जरूरत शरई ना खिंचवाओ। हमें लोग की न अपना बनाए के सप्लाई करेंगे। और नंबर 2 रसूल पाक का नालैन तबर्रुक है, सर पे रखो ताज है, शू ऑफ होली प्रॉफिट, सर पे रखो कुछ कराउन है, लेकिन नबी नहीं है। रसूल की काली कमली मिल जाए तो मेराज है, मगर वो कमली वो चादर वो शॉल नबी नहीं है। नबी का कुर्ता नबी नहीं है, नबी की लुंगी नबी नहीं है, नबी का ड्रेस तबर्रुक है मगर नबी नहीं है। वरना कई दर्जन नबी हो जाएंगे, टोपी नबी, कुर्ता नबी, बनियाइन नबी, अंडरवियर नबी नहीं हो गए ना, नबी एक है। ये सब उनके मलबूसात हैं, तबर्रुकात हैं, उनका ड्रेस है। तो नबी का कपड़ा नबी नहीं है, तो नबी का फोटो भी नबी नहीं है। हमारा फोटो 1000 है तो क्या मोहम्मद आजम के 1000 बेटे हैं? तो फोटो है, हमें याद दिलाएगा, रिमाइंड करेगा आपको, लेकिन वो हाशमी नहीं है। हमारे बच्चों का बाप नहीं है, हमारी बीवी का हस्बैंड नहीं हो जाएगा हर फोटो। तो फिर नबी का फोटो अगर आप कहते हो तो नबी का फोटो नबी नहीं हो सकता। और मोमिन जवाब क्या देता है कब्र में? हाज़ा नबी हो ना। किसी फोटो को वो नबी नहीं कह सकता जब तक ज़ाते पाके मुस्तफा खुद ना हो। जवाब से साबित होता है हाज़ा नबी हो ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये उसी को कहेगा, फोटो को नहीं कहेगा। ज़ात को देखेगा तब बोलेगा। कभी हाँ देखता तो ज़ात ही को है, मगर बहुत बड़ा मगर उनकी जमा से मगर माची मगर आपका गाँव मगर है, मगर हुजूर आते नहीं। रोटरडम में कब्रस्तान है, हाँ है। यहाँ कब्र बनाते हैं, हाँ बनाया। मुर्दे लटाई दिया। हुजूर गुंबद खजरा के नीचे अपनी कब्र में, हाँ। और ई उम्मती है अपनी कब्र में। खिड़की खुल जाती, खिड़कियां खुल जाती, नबी को देख लेता है। तो असली नबी को देखा, हाज़ा नबी हो ना बोला। अब रोटरडम में कब्र है और मदीने में हुजूर की कब्र, खिड़की खुले। अबे खिड़की होगी कि सुरंग है? कहाँ रोटरडम और कहाँ मदीना? अब बीच में पानी है, पुनाई घुस जाई। कब्र इतनी गहरी तो होती नहीं कि समंदर के नीचे हो। कहीं हासिल समझो नहीं, नबी की कब्र और रोटरडम में उम्मती की कब्र दूर तो है, लेकिन जमीनियां चिपक जाती है, कब्रियां सिमट जाती है। तो जैसे नबी की कब्र और उम्मती की कब्र सिमट गई ना, खिड़की खुल गई हुई, देख लिया। हम कहे का होता दो, जमीन में सिमटने की ताकत मान लिया, नबी में आने की ताकत नहीं मानता है। लगता है हिंदुस्तानी नेताओं की तरह ये धरती पुत्र है। जमीन में ताकत मानने में शिर्क नहीं है, और नबी में मान लो आने की ताकत तो शिर्क हो जाता है। ये कैसे शिर्क फरोश लोग हैं। अब हम ऐसा मिसाल गई कि खिड़की तो खिड़की, पूरा दरवाजा खुल गया अकल का। आज मेरा नबी कब्र में, आज उम्मती भी कब्र में है, तो कब्र को कब्र से सटाई के खिड़की खोल रहे हो। हमें बताओ कि जब नबी जमीन पर थे तो सहाबी का इंतकाल हुआ, नबी के सामने सहाबी
نبی کے سامنے صحابی کا انتقال ہوا، نبی نے نہلوایا، کفنوایا، جنازہ بڑھایا، جنازہ اٹھوایا، جنت البقیع پہنچایا، قبر میں اتروایا، مٹی دیا اور نبی نے دعا کیا مغفرت۔ صحابہ بھی ساتھ میں، سینکڑوں صحابہ ساتھ میں ہیں، سارے صحابہ زمین پہ، نبی زمین پر اور ایک صحابی قبر میں۔ نبی کا فرمایا کہ دعا مانگ کے واپس نکلے، اہل بیت والی گلی سے نکلے، جنت البقیع سے اہل بیت والی گلی پر، اب جو انہوں نے مٹا دیا، اور سیدھے باب جبریل یا باب النساء کی طرف نکل گیا رسول صحابہ کے ساتھ۔ جیسے ہی باہر نکلے فرشتہ آیا، صحابی کو قبر میں بٹھایا، پوجا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لے کے گلی میں، اسٹیج میں، اسٹریٹ سے جا رہے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ رسول اور آگے نہیں کر گئے اپنے صحابہ کو لے کے۔ مہدی ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ رسول اور آگے جا چکی۔ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رسول ایک دم باب جبریل کے بعد ہو گیا، پوچھا من کنت تقول فی ھذا الرجل، تو قبر میں صحابی دیکھ رہا ہے اور زمین کے اوپر صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو قبر جنت البقیع کی قبر میں صحابی دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی قبر میں۔ صدیق اکبر دیکھ رہے میرے پاس ہے، فاروق اعظم دیکھ رہے میرے پاس ہے، عثمان غنی دیکھ رہے میرے پاس ہے، علی مرتضیٰ دیکھ رہے میرے پاس ہے، حضرت سعد دیکھ رہے میرے پاس ہے، حضرت سعید دیکھ رہے میرے پاس ہے، حضرت طلحہ دیکھ رہے میرے پاس ہے، حضرت زبیر دیکھ رہے میرے پاس ہے، ابو عبیدہ بن جراح دیکھ رہے میرے پاس ہے، عبدالرحمن ابن عوف دیکھ رہے میرے ساتھ۔ قبر میں بھی نبی، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر بھی نبی۔ اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسی عطا کی ہے کہ حبیب جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے؟ تو میرے جس پیغمبر کو حولین کی قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا، بھارت کی دھرتی پہ قبر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکا، ہند مہاساگر کی موجیں نہ روک سکی، اٹلانٹک اوشین نہ روک سکا، بڑے سے بڑے پہاڑ میرے نبی کو آنے سے نہیں روک پائے۔ ہر غریب امتی کی قبر میں رسول آتے ہیں، تو جس پیغمبر کو روٹرڈم کی قبر میں آنے سے بڑی طاقت نہ روک سکی، اس نبی کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ اپنی مجلس میں آنے سے کیسے روکو گے؟ اپنی محفل میں آنے سے کیسے روکو گے؟ دیکھیے، آج ایک ایسا سچ بول دوں جو لوگ ابھی تک نہیں بولے ہیں۔ یہ جو ہم لوگ میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں، کا رسول آ گئے ہیں، کا نبی تو ہے میلاد کی محفل میں آتے ہیں، تم کھڑے ہو گئے، غلط ہے نا۔ جب نہیں ہے تب کائے کھڑے ہوئے؟ کوئی آوے وہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، نبی تو آئے گے، آتے ہیں کیا؟ ہم جو ان بات کہی تھے کل نبی کا دیکھ کے کھڑے ہوتے ہو، ایسی بات مت کیا کرو۔ ہم کبھی نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے۔ آج میں سچائی اگل لوں، ہم نبی کو دیکھ کے میلاد میں نہیں کھڑے ہوتے، ابھی کھڑے ہوں گے نا تو دیکھتے نہیں ہوں۔ کر وجہ تھا ایک دن ایسا رہا کہ ہم نے یہ کہا کہ آ سکتے، ہر میلاد میں نبی آتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، جھوٹ نہ بول۔ ہم تو وہ نہیں کہے کہ ہر میلاد میں آتے ہیں، ہم ہی کہیں کہ آ سکتے ہیں۔
कोई गवाह रोक नहीं सकता। उनकी मर्जी है। हमें कब्र में आते हैं कि रोक ली, हमारे घर में के रोक लेगा, मगर मर्जी तो आका की है। हम फरस बिछाए हुए हैं, लंगर बनाए हुए हैं, सबका खिलाए पिलाए रहे हैं, जो नबी को पसंद है वो सब कर रहे हैं। शाहिद आए हैं क्या कहने सुभान। आ गए तो फजल होगा, नहीं आएंगे तो अदल होगा। हमारी तो लगी है अर्जी, काम करेगी उनकी मर्जी। अब आओ हमको का भेद बताइए। मीलाद हो रहा था, क्या मीलाद? मंजूम नजरान अकीदा शोराए कराम पेश कर रहे थे, मीलाद पढ़ रहे थे, सब बैठे। इतने में रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई। नबी ने करम कर दिया, शरीक महफिल हो गए, सारे सुन्नी बैठे। नबी आ गए महफिल में, सारे सुन्नी बैठे। मगर वही मजमे में एक वली था। कौन था? वली। वली ने नबी को देख लिया। वली ने एक जुमले बता बच्चों, वली ने नबी को देख लिया। नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है, सुन्नी खड़े हुए। तो नबी को देखकर वली खड़ा हुआ, वली को देखकर सुन्नी खड़े हुए। हमने वली को देखा खड़ा है, शाह वलीउल्लाह को देखा खड़े हैं, अब्दुल अजीज को देखा खड़े हैं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देखा खड़े हैं, मुजद्दिद अल-फैसानी को देखा खड़े हैं, हमें हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की तक को देखा कि खड़े हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत खड़े हैं, हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन खड़े हैं, सुल्तानुल वाइजीन अहमद अशरफ खड़े हैं, सरकार कला मुख्तार अशरफ खड़े हैं, मुहद्दिस आजम हिंद खड़े हैं, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान खड़े हुए हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान खड़े हुए हैं। अबे नबी को देखकर वो खड़े हुए, वली को खड़ा देखकर सुन्नी खड़ा हुआ। अभी बताओ क्या वली खड़े नहीं हुए? फैसले हफ्त मसला ही पढ़ लो, तुम्हारे पीर साहब ने फैसला किया कि मैं क़याम ताज़ीमी करता हूँ, उन्हीं को देखकर खड़े हो जाते। अब फिर रिपीट करता हूँ तेजी से। मिलाद हो रहा था, नबी आ गए, सुन्नियों ने देखा नहीं, बैठे रहे। उसी में एक वली था, वली ने देखा नबी को तो वली खड़ा हो गया। और जब वली खड़ा हुआ तो सुन्नियों ने देखा वली खड़ा है, तो सारे सुन्नी वली के लिए खड़े हो गए। ये तो हमारे मिलाद में हुआ। मगर जिसके इज्तिमा में, जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? जिस जलसे में नबी जाता नहीं, उस जलसे में वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? किसको देख के खड़े हो? मगर एक आखिरी बात, या रसूलल्लाह, अगर आप मीलाद में कभी आते भी हैं, तशरीफ लाते भी हैं, तो दिखते क्यों नहीं? दिखाई पड़ जाए तो मजा आ जाए ना। आप आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्यों? दिखाई पड़ने से क्या फायदा होगा? अरे सरकार, जब आप लाखों आदमी के मजमे में दिखाई पड़ जाएंगे, सब मान लेंगे। अकल में क्या बात आई? या रसूलल्लाह, अगर आपको लोग देख लेंगे तो मानेंगे कि नहीं? भैया देखेंगे तो मानेंगे कि नहीं? क्या कहा था तो आप दिमाग मानिए कि नहीं? या रसूलल्लाह, आप दिख जाओ तो सब मानेंगे। तब तक रूह बोली चुप। बड़ी मंतिक लड़ाना है, बड़ा दिमाग लड़ाना है, बड़ा ब्रेन लड़ाना है, रियलिटी से मुंह फेर रहा है। तुमने क्या अगर इन देखने से मानेगा क्या? हमें कहा हाँ सरकार, अगर दिखाई पड़ेंगे तो क्या नहीं मानेंगे? कहीं अगर देखने से मानना जरूरी होता, अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, अतबा और शैबा ने देखा कहाँ माना? देखने से मानना जरूरी कहाँ है? अबे वो देख के नहीं माना, वो ऐसे करनी ने सुन के मान लिया। कभी अभी यह सवाल हटा नहीं कि रसूलल्लाह, हम मीलाद में दिखाई पड़ते क्यों नहीं? और कब्र में हर एक को दिखाई पड़ते हैं। कब्र
में दिखाई पड़ते हैं कब्र में, मिलाद में नहीं दिखाई। अगर तू समझाओ, इस्लाम बोला समझाओ, तो दोनों इम्तिहान है, दोनों तुम्हारा एग्जामिनेशन है, दोनों तुम्हारे यकीन का टेस्ट है। टेस्ट मेक्स स्टूडेंट बेस्ट, नो बेस्ट विदाउट टेस्ट। इम्तिहान देगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, किसी फेल है। तो कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, और महफिल मिलाद में न दिखाई पड़ना भी इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान यह है, मैं दिखाई पड़ूंगा, दिखाई पड़ूंगा, देखो उम्मती पहचानता है कि पहचानता है कि पहचानता है कि नहीं। मैं दिखाई पड़ूंगा कब्र में, देखो उम्मती पहचानता है कि नहीं। अब मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखो मानता है कि नहीं। मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखो मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। और जो कब्र के इम्तिहान में फेल हो गया, नबी करीम ने क्वेश्चन खोल दिया, इल्म गैब के फैजान से उम्मत को नवाजा, माजी हाल मुस्तकबिल सब बता डाला। अब भी फेल हो जाओ तो कितने बदनसीब स्टूडेंट हो। वाखिर दावाना